Students, I am starting with the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together from the book Hornbill. Before starting the chapter, I want to explain you about the lesson. What is there in the lesson, I will tell you. In this chapter, the narrator, which is a 37-year-old businessman, his wife is there whose name is Mary, and they both dreamt to voyage around the world like the famous Captain James Cook. They decided to have the sea voyage, and for that what they have done, they perfected their seafaring skills for 16 years. For 16 years they got the perfection in that skills. They got a professionally built boat, Wave Walker, in July 1976. They got one boat for that. They have arranged that boat whose name was Wave Walker, and they have to start with that boat for their voyage. And the narrator, together with his wife and kids, now narrator wanted to start the voyage with his wife and the kids. The name of the kids were Jonathan, who was 6 years old, and Suzanne, who was 7 years old. And they set sail for Plymouth. They have started their voyage from the Plymouth, England. The first half of the journey was easy and comfortable. When they have started their journey, they didn't face any difficulties. It was very comfortable journey. But the later half proved to be tremendous. But later on, it was very dangerous things which happened, and they have faced a lot of difficulties and facing all sort of hazards. ये सारे hazards को face करने के बाद ultimately they were able to reach an island. They have reached the island after facing all the difficulties. They all together, पूरी families ने इकट्ठी होके ये सारी जो problems हैं उनको face किया, जो awkward situations आई उनको handle किया, and later on they reached the island Isle Elmstrand. Thus, though this is the all that's well, that's end well. So एक phrase है all's well that ends well, that suits here because the family was together and they have faced the problem and the end was very comfortable. Now I am going to start the chapter line to line. I will explain you. I am starting from the page number 13 from the starting. In July 1976, my wife, narrator is saying, narrator who is a businessman, I told you earlier, narrator, his wife Mary, son Jonathan, 6 years old, daughter Suzanne, 7, and they set sail for Plymouth. They have started their journey from the Plymouth, England, to duplicate the around the world voyage made 200 years earlier by Captain. This journey was done earlier 200 years back by the Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman. Now the narrator is saying he and Mary, the wife, they both had the dream of sailing in the wake of the famous explorer. They also wanted to explore the world, so they wanted to do the journey. And for the past 16 years, since last 16 years, they had spent all their leisure time. They have spent all the time honing our seafaring skills. They have done just to developing their seafaring skills, which they have to face very boldly in the British waters. Means they were ready to start the voyage. Our boat, now he is telling about the boat. The name of the boat is Wave Walker, who is a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty. It was, you can say, a very beautiful, you can say, boat over there. Had been professionally built. It was built professionally, and we had spent months fitting it out. Now, the narrator is saying he and his wife has spent the years just to fit that boat and testing it in the roughest weather we could find. And they have checked that boat in the roughest weather also. The first leg of our planned 3 year. The first leg means the first part of their 3 year 105,000 kilometer journey passed. Means earlier time was passed very pleasantly as we sailed down. As they started sailing down the west coast of the America to Cape Town. They have started from the America to the Cape Town. Therefore, before heading east, before going towards the east, we took on 2 crewmen. They have arranged 2 crewmen also with them. That crewmen होते हैं which are there on the boat, जो कि boat पे help करते हैं. उनका नाम था American Larry Weasel and Swiss Herb Sizzler.
They both helped them to help us tackle one of the world's roughest seas. ये दोनों ने उनकी जो है वर्ल्ड के रफेस्ट सीज में उनकी हेल्प करने की कोशिश की. द साउदर्न इंडियन ओशन. दिस सी बिलोंग टू द साउदर्न इंडियन ओशन. नाउ आई हैव कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. On our second day, out of Cape Town, we began to encounter strong gales. Gales होती हैं gust of winds. On the second day, they have to face the strong winds. For the next few weeks, they blew continuously, and that winds blew continuously for next coming weeks. Gales did not worry me, but the narrator was saying that winds were not worrying me. were not worrying narrator, but the size of waves were alarming. लेकिन जो साइज था उन वेव्स का वो जो है एक अलार्मिंग था. मी वो खतरे की घड़ी था. अप टू 15 मीटर्स, क्योंकि वो 15 मीटर्स तक का साइज था. एज हाई एज अवर मेन मास्ट. मेन मास्ट होता है बच्चों पोल ऑफ शिप. उनके जो शिप का पोल था उतना ही, उससे भी वो बड़ी जो है वेव्स जा रही थी. December 25 को we found out 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, atrocious होता है harsh weather, we had a wonderful holiday complete with Christmas tree. But they had the wonderful holiday on that day because they have to celebrate the Christmas. New Year's Day saw no improvement in the weather. But the next day was the new year. According to Russians, after Christmas, new year starts, but there was no improvement in the weather. But we reasons that it had to change so. लेकिन उन्होंने सोचा कि ये weather जो है वो जल्दी ही change हो जाएगा. And it did change for the worse. But narrator कहते हैं कि वो change तो जरूर हुआ, लेकिन betterment के लिए नहीं हुआ, worse के लिए हुआ. At the dawn on January 2, the waves were gigantic. बट जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी जनवरी 2 की, उस टाइम पे जो वेव्स थे जाइजेंटिक होते हैं, माइटी स्ट्रॉन्ग. इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग यू कैन से वेव्स थे उस टाइम पे. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप. वो कहते हैं कि हम छोटे से स्मॉल साइज के जो स्मॉल जिप थे उसके साथ हम सेल कर रहे थे. एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 knots. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous sea rolling towards us. वो कहते हैं जैसे ही हमारी जो शिप है वो टॉप पे पहुंची, हर एक वेव जो है वो इस तरह से अलार्मिंग हमारी तरफ आ रही थी जैसे कि वो हमें खतरा दिखाई दे रहा था कि आगे हमारे लिए डेंजर ही है. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप. उन्होंने जो है उस जिप को जो है वो स्टॉर्म उसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया ताकि वो अपनी बोट को स्लो कर सके. एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न. और उन्होंने जल्दी से लैश्ड मीन्स फास्टन, उन्होंने जल्दी से उस रोप को जो है वो टाइट किया. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग. डबल लैश्ड होते हैं, उन्होंने अपने एफर्ट्स जो है वो डबल कर दिए. वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स. और उन्होंने अपनी जो लाइफ लाइन से जो भी उनके लिए लाइफ सेविंग मटेरियल था उनके पास, उन्होंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. जो भी उनके पास वियर करने के लिए था उन्होंने वियर कर लिया. डॉन्ड सॉइल स्किन्स, उन्होंने अपने स्किन के ऊपर ऑयल लगा लिया. और वो जो है उनको लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहन ली और वेट करने लगे कि शायद वेदर में इम्प्रूवमेंट आ जाए. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम at about 6 p.m. But at 6 p.m. the disastrous environment was in front of them, and with the ominous silence, there was a silence over there, and the wind dropped. The wind as वो चलनी रुक गई, and the sky immediately grew dark. और जो sky है, जो आसमान है वो बिल्कुल dark हो गया. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. और वो जो हमारा जो बैक की तरफ, टॉवर्ड हैफ मीन्स पीछे बैक की तरफ, शिप के बैक की तरफ एक बहुत ही बड़ा क्लाउड जो है वो रोर करता हुआ आ रहा था. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड. लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर बाद डर से मैंने ये रियलाइज किया कि वहाँ पे वो क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. ये बहुत ही बड़ी वेव थी, समुद्र की एक बहुत ही बड़ी लहर थी जो कि उनको फॉलो कर रही थी.
That it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. वो जो बाकी waves की height से वो double थी and with a frightful breaking crest. और वो जो है वो हमें बहुत ही डरावनी नजर आ रही थी. वो हमें लग रहा था कि ये हमारा जो है कुछ नुकसान करके जाएगी. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. And for a moment I thought we might ride over it. थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे. But then a tremendous explosion shook the deck. लेकिन एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने कि हमारी डेक को हिला के रख दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. जो शिप को कवर कर लिया एक ग्रीन और व्हाइट वाटर ने. My head smashed into the wheel. में जो हेड है उसका जाके नरेटर का व्हील में जाकर लगा. I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और उस टाइम पे नरेटर को महसूस हुआ कि उनकी जो शिप है वो डूबती जा रही है. I accepted my approaching death. वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी approaching death जो डेथ है वो उसको महसूस किया कि हमारे सामने है. And I was losing consciousness. और उस टाइम कॉन्शियसनेस भी लूज हो रही थी. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और मुझे बहुत ही शांत नजर आ रहा था. अनएक्सपेक्टेड माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. लेकिन वो कहता है कि एकदम से मेरा जो हेड है वो पानी से बाहर आ गया. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग होती है स्टूडेंट्स टूटनी, ब्रोक हो जाना. तो इस टाइम पे वेव वॉकर जो है वो नियर अबाउट टूटने ही वाली थी. हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. Then a wave hurled upright. My lifeline jerked taut. और मेरी जो लाइफलाइन है वो मेरे को एक ट्रॉट दे रही थी. And I grabbed the guard rails, sailed through the air into wave walker's beam boom. और मैं सेल करता हुआ जो है मेन बूम पे पहुंच गया. वेव वॉकर की शिप की मेन बोट की मेन बूम पे पहुंच गया. My left ribs cracks. वो कहते हैं कि रेटर कहता है मेरी लेफ्ट रिब्स जो हैं वो बिल्कुल क्रैक्स हो चुकी थी. माई माउथ फिल्ड विद द ब्लड. मेरे मुंह से पानी निकल रहा था, पानी की जगह ब्लड निकल रहा था. एंड ब्रोकन टीथ क्योंकि मेरे जो दांत थे वो टूट चुके थे. एंड होल द माउथ वॉज फुल ऑफ ब्लड. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. वो कहते हैं किसी तरह से मुझे एक व्हील मिल गया. मैंने उसकी सपोर्ट लेके अपने आप को सेव करने की कोशिश की. Water everywhere. I could feel that the ship had water below. But I dared not abandon the wheel to investigate. वो कहता है सब जगह पे मुझे जो है वो पानी ही पानी नजर आ रहा था. Suddenly the front hatch होता है जो डोर होता है, डोर डेक होता है शिप का, उसे हम कहते हैं हैच. डोर डेक ऑफ द शिप was thrown open. एकदम से उसका शिप का वो जो डोर है वो खुल गया. एंड मैरी appeared. मैरी अगेन मैं आपको याद दिला दूं, मैरी उनकी वाइफ थी जो उनके साथ गई थी. वी वर सिंकिंग. उसने आके चीखा. शी स्क्रीम, शाउट करती हुई बोली कि हम डूबने वाले हैं. द डेक्स आर स्मैप्ड एंड वी वर फुल ऑफ वाटर. वो कहती हैं कि जो डेक हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, स्मैश हो चुके हैं और हम जो है वो पूरे पानी से भर चुके हैं. टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. वो कहता है, नरेटर कहता है कि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मैंने उसे कहा कि आप व्हील की सपोर्ट लेके अपने आप को बचा सकती हो. लैरी एंड हर्ब जो उनके जो किड्स थे उनके साथ आए थे, बॉय एंड गर्ल, दे वर पंपिंग लाइक मैडमैन. वो बहुत बुरी तरह से घबराए हुए थे. ब्रोकन टिम्बर्स होती हैं वुडन बीम्स, hung at crazy angles, the whole starboard side plunged inwards. Clothes, crockery, charts, tins, toys sloshed about in the deep water. ये सारी उनकी जो belongings थी वो deep water में डूब चुकी थी. And I half swam, half crawled into the children's cabin. वो कहते हैं कि नरेटर कहते हैं मैं आधा डूबा हुआ, आधा तैरता हुआ, रेंगता हुआ मैं किसी तरह से बच्चों के कैबिन में पहुंचा. Are you all right? मैंने उनसे जाके पूछा, Are you all right? Yes, they answered from the upper bunk. They answered from the upper side of the ship. But my head hurts a bit, said the Sue told that my head hurts a little bit, pointing to the big bump above her eyes. She was having a swollen bump on the above top of the eyes. I had no time to worry about bumping heads. But narrator was not having any time just to
worry about these type of things. After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back down the deck. He said that after finding these things that are hammers, screws and canvas, he went back to the deck with the starboard side bashed open, and he just towards the right side of the starboard, and he just opened it. We were taking water with each wave that broke over us, and we were just covered with the water which is going to break us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. It was sure that if they are not going to do any repairs, if repairing is not done, so they are going to sink. वो पूरे डूब जाएंगे and the death is certain. Somehow I managed to sketch the canvas. So किसी तरह से उन्होंने canvas का arrangement किया and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. और उन्होंने waterproof जो है hatch covers को देखा. Some water continued to stream below. कुछ वाटर अभी भी नीचे की तरफ जा रहा था. But most of it now being deflected over the side. लेकिन पूरा जो ज़्यादातर था उसने जो है पूरी तरह से जो है सीन को चेंज ही कर दिया था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris. Debris होता है कूड़ा करकट, जो रबिश होता है. वो रबिश ने जो उनके हैंड पंप्स थे उनको टोटली ब्लॉक कर दिया. अराउंड द गैबिन एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और इलेक्ट्रिक पंप जो है उससे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. वाटर लेवल जो है वो इनको एक थ्रेटन देता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था. बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेस्ट ओवरबोर्ड. लेकिन नरेटर ने वापस अपने डेक पे जाके देखा कि वहाँ पे अभी भी 2 जो है वाटर हैंड पंप्स जो है वो अभी भी वहाँ पे थे. अलॉन्ग विद द फोरस्टेल सेल. फोरस्टेल होता है जो फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप, द जिप जिसे हम जिप कहते हैं. द डिंजीज एंड द मेन एंकर. डिंजीज होती हैं स्मॉल बोट एंड द मेन एंकर. ये उनको सब चीज़ें चाहिए थी अपने आप को सेव करने के लिए. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप. फिर हमने सोचा कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप भी है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. आई कनेक्टेड इट टू द आउटर पाइप. मैंने उसको आउटर पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क. और मैंने सोचा कि ये शुक्र है कि वो काम करना स्टार्ट हो गया. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एंडलेस बिटरली कोल्ड एंड रूटीन ऑफ पंपिंग. हम लोग लगातार पंप कर रहे थे. स्टीयरिंग, वर्किंग द रेडियो, सब कुछ कॉन्टिन्यूस चल रहा था और आगे बहुत बड़ी रात भी हमारे सामने थी. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मिड डे कॉल्स. हम जो कॉल्स कर रहे थे उसकी कोई रिप्लाइज नहीं आ रही थी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम बहुत दूर जा रखे थे. वी वर फार फार अवे फ्रॉम द we are at the another corner of the world, so that's why our calls were not reaching anywhere. Sue's head had swollen alarmingly. Sue का जो head था वो जिस पे चोट लगी थी वो बहुत swollen कर गया था. She had 2 enormous black eyes and now she showed a deep cut on her arm. अब उसने ये भी बताया कि मेरी आर्म पे भी कट लगा था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, कि पहले क्यों नहीं बताया, तो she answered, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो स्यू ने बोला कि जब आप पापा हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं आपको और वरी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने आपके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई. सो दैट्स व्हाई बाय मॉर्निंग ऑन January 3 the bumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation. हम कॉन्टिन्यूस वर्क कर रहे थे तो धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ चला गया, कंट्रोल में आ गया और हमें 2 घंटे का रेस्ट भी मिला. बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन कहीं से अभी भी लीकिंग हो रही थी. एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स. अब हम नए नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 16. आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील. तो मैंने देखा जो उनकी मेन रिब फ्रेम्स थे, रिब फ्रेम्स होते हैं कर्व्ड टिम्बर्स जो थे, वो पूरी तरह से स्मैश हो गए थे और टू द कील मीन्स लॉन्गेस्ट टिम्बर. एंड इन फैक्ट देयर वर नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन. थोड़ी सी पार्टीशंस कपबोर्ड्स के बचे थे, बाकी सब कुछ स्मैश हो चुका था. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर couldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वेव वॉकर की अब हालत ऐसी नहीं थी
कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 2 स्मॉल आइलैंड्स भी हैं जो कि फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अवे हैं। वन ऑफ देम आइल एमस्टरडम, उनमें से एक का नाम था आइल एमस्टरडम, दैट वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ओनली our only hope was to reach these पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और सिर्फ हमारी यही होप थी कि हम इस ओशन से बच के वहाँ तक पहुँच सकें। बट अनलेस द विंड सीज abated so we could host a sail, our chances could be slim indeed, लेकिन हमारे चांसेस बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो हमारे इंजन को बिग वेव ने जो है वो आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, इसलिए हमारे जो चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, जनवरी 4 की डेट की बात बता रहे हैं जब लगातार वो 36 आवर्स तक उन्होंने लगातार पंपिंग करते रहे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम जो पानी के लास्ट सेंटीमीटर्स वाटर तक पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमने सिर्फ उस वाटर के सो हैंडल करना था जो अभी भी धीरे धीरे शिप में एंटर कर रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, और जो प्रेशर था वो अभी भी जो है कॉन्टिन्यूस बना हुआ था। सो वी हॉइस्ट द स्टॉर्म जिम, हमने स्टॉर्म जिम को हॉइस्ट किया। हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हम उस तरफ की तरफ गए जहां हमने देखा था कि कुछ आइलैंड्स जो है फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स पे थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ थोड़ा सा कॉर्न मील मिला एंड क्रैकर बिस्किट्स मिले, एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन से उस पूरी फैमिली ने कुछ भी नहीं खाया था, स्ट्रगल में लगे हुए थे। आज उन्होंने पहली बार अपना जो है फर्स्ट मील उन बिस्किट्स और बीफ्स के साथ लिया। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन फिर भी उनका जो चैन था, जो रिलैक्सेशन मिली थी वो बहुत छोटे टाइम के लिए थी। बिकॉज एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स अगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर काले काले जो क्लाउड्स हैं उनको उनका पीछा करने लगे। विद इन द ऑर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और जो विंड की स्पीड है वो भी बढ़ गई। सीज वर गेटिंग हायर, जो समुद्र की लहरें हैं वो भी ऊंची उठने लगी। वेदर कॉन्टिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो है वो वेदर जो है वो खराब होता रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और मॉर्निंग में जनवरी 5 में हमारी जो कंडीशन थी फिर वो बहुत अच्छी नहीं थी। When I went in the comfort, the children, John asked, Daddy, are we going to die? वहाँ पे जब वो बच्चों के पास गया तो वहाँ पे बच्चों ने एक क्वेश्चन किया, उसके किड ने क्वेश्चन किया कि क्या हम मरने वाले हैं? Are we going to die? I tried to assure him, मैंने उसको सांत्वना देने की कोशिश की। We could make it, नहीं, हम लोग करेंगे कोशिश। But Daddy, he went on, we aren't afraid of die. If we all can be together, you and mummy, you and I. बहुत अच्छी बात उस छोटे से बच्चे ने कही। देखो स्टूडेंट्स, उसने क्या समझाया कि हमें डरने से मरने से कोई डर नहीं लगता अगर हम इकट्ठे हैं, हम टुगेदर हैं। कौन कौन? यू, पापा, मम्मी, सिस्टर एंड आई। अगर हम इकट्ठे हैं तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्स, नरेटर इज सेइंग, मुझे समझ में नहीं आया उस बच्चे की बात का क्या आंसर दूं। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. जो भी मेरे पास था मैंने उस समुद्र से लड़ाई करने की कोशिश की, और मैंने सोचा कि मैं अब फिर से दोबारा जो मेरी हिम्मत है उसको स्ट्रॉन्ग करूँगा। To protect the weak and starboard side, I decided to heave to. मैंने सोचा कि अब मैं फिर से स्टार्ट करूँ अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। With the undamaged port hull facing the oncoming waves, जो पोर्शन अनडैमेज था उसी हेल्थ से मैंने उस वेव्स का सामना करने की कोशिश की। यूजिंग एन इम्पोवरेस्ड ट्री एंड एंकर ऑफ हैवी नायरन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, इन सब चीज़ों की हेल्प से नरेटर ने अपनी और अपनी फैमिली की वाइफ को सेव करने की कोशिश की। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एंड द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स होते हैं जो वुडन बोर्ड्स होते हैं। वहाँ वो कहता है नरेटर, मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे
और पानी जो है वो धीरे धीरे अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, हमने सोचा कि हमारा एंड अब नियर है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 विद द विंड ईजिंग, कहते हैं लेकिन वेव वॉकर है हमें स्टॉर्म से बाहर निकल ले आई, और अगली मॉर्निंग जो कि January 6 थी उसमें जो विंड्स की जो स्पीड है वो भी ठीक हो गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम सी की लेंथ को मेजर करते हैं। तो नरेटर ने उस पर रीडिंग की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पिन्स, चार्ट रूम में जाके मैंने विंड की स्पीड्स को वर्क किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। वो कहता है कि हम 15,000 किलोमीटर्स जो हैं वो हम दूर हैं और वहाँ पे सामने जो है हमें 55 किलोमीटर वाइड आइलैंड मिलेगा। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. Sue जिसके की चोट लगी थी सिर पे, उससे भी मेरे पास आई। The left side of her head was now swollen. Her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. उसने हमारे लिए कार्ड बनाया था, उसने वो दिया मुझे। On the front she had drawn caricatures. उसने फ्रंट में जो है वो कुछ पिक्चर्स बनाई थी। And of Mary and me with the words. मेरी और मैरी की, अपनी मम्मा की पिक्चर्स बनाई थी जिसमें लिखा था Here are some funny people. Did they make you laugh? ये एक funny people थे जो कभी थे, because she is thinking that we are not going to say. So she said, Did they make you? क्या ये आपको हंसा सकते हैं? I laughed a lot as well, और मैं बहुत जोर से हंसा। Inside was message, Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. उसने फिर होप दी कि नहीं, हम लोग जो है कुछ ना कुछ हमने रास्ता निकाल ही लेंगे। I checked and rechecked my calculations. वो कहता है नरेटर, मैं अपने कैलकुलेशंस को चेक करता रहा, रीचेक करता रहा कंपास से। And we had lost our main compass and I was using a spare. उससे कहा एक स्पेयर की हेल्प से मेरा मेन कंपास जो वो गुम हो गया था, और मैं स्पेयर की हेल्प से which had not been corrected for magnetic variations, वो करेक्ट पिक्चर नहीं देता, फिर भी उसकी कोशिश से मैंने कोशिश की उसे रीड करने की। I made an allowance for this and another estimate for influence of westerly color which flows to this part of the Indian Ocean. About 2 p.m. 2 बजे की बात है, I went on the deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. मैंने लैरी से कहा कि ये 185 डिग्री का कोर्स जो है उसको स्टीयर करे। We were very lucky. I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 a.m. उसने कहा कि हम 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। Then with the heavy heart I went below, climbed on my bunk. And amazingly dozed off. उस टाइम पे मैंने पहली बार हल्की सी नींद ली। And when I woke it was 6 p.m. जब मैं उठा 6 बज चुके थे and growing dark, अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island. मैंने सोचा हमने आइलैंड मिस कर दिया है। With the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the western wind. वो कहता है मेरे पास हिम्मत नहीं है कि हम दोबारा वापस जाके वेस्टर्न विंड को फेस करेंगे। At that moment a tousled head, toudles होता है untidy head, appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Jonathan ने कहा कि क्या मैं हग ले सकते हो? Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the world. उसने कहा तुम सबसे बेस्ट डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन। मेरे सर ने मेरे को रिप्लाई किया। नाउ टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, वो कहते हैं मैं तो डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड। ऐसा क्यों कह रहा है नरेटर? क्योंकि नरेटर को हल्की सी नींद आ गई थी और उसको पता ही नहीं चला कि वो आइलैंड पे भी पहुंच गए हैं। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो कहते हैं देखो हमारे सामने आइलैंड है। They chorused means collectively they said, and as big as a battleship, जैसे हमने बहुत बड़ी बैटल जीती हुई है। I rushed on deck, मैं डेक पे वापस गया, dazed with relief at the stark outline of the Amsterdam.
It was only a bleak piece of volcanic rock. It was only a bleak piece of volcanic rock with the little vegetation. वहाँ पे एक छोटी सी रॉक की तरह वो आइलैंड था जिसमें थोड़ी सी वेजिटेशन थी. मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. और वो पूरी आइलैंड इस वर्ल्ड का पूरा ब्यूटीफुल आइलैंड है. Now page number 18. We are going to finish the chapter. We anchored offshore for the night. Offshore means we have just changed offshore of the night. Next morning, all 28 inhabitants. Total 28 inhabitants were there on the island. Total number of people who were residing on the islands were 28. Cheered as they helped us ashore. क्योंकि उन्होंने हमें वहाँ पे रहने की लिए हेल्प की. And with the land under my feet, again my thoughts were full of Larry and Harvey. Cheerful and optimistic under the direst stress. And मुझे उस टाइम लैरी और हार्बी की याद आई जिसने हमारी बहुत हेल्प की थी, जो कि ऑप्टिमिस्टिक थे उस टाइम पे, जो हॉरिबल स्ट्रेस था उसको लेके. एंड ऑफ मैरी जो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज, मेरे कहने पे पूरे टाइम पे वो व्हील पे रही थी. ऑल दोज क्रूशियल ऑल्स. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. मैंने किसके बारे में सोचा? अपनी 7-year-old गर्ल डॉटर स्यू के बारे में. who did not want to us to worry about a head injury, जो अपनी सिर की इंजरी के बारे में हमें बताना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे हमें लगे ही ना कि वो उसको इतनी प्रॉब्लम आई. वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन, जिसको ठीक करने के लिए 6 minor ऑपरेशन भी करने पड़े. टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्किन एंड स्कल, क्योंकि स्किन और स्कल के बीच में जो है वो ब्लड क्लॉट बन चुका था. एंड अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई. फिर मैंने सोचा कि वो उस बच्चे के बारे में जो कि मरने से नहीं डरता. अब यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यूज देखने को मिलती हैं? ऑप्टिमिज्म. If you have never seen my previous videos in which I have explained the other chapters, click the I button on the top right hand side of your device. And if you like this video, share to your friends and subscribe the channel. Thank you.